ओके मालिक, सो गुड आफ्टरनून मालिक, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड एंड आशा करता हूँ कि आप अपलोड कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय। तो टेक्निकली वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ, वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 7 ऑडिट रिपोर्टिंग। ओके, चैप्टर 1 का एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी बचा हुआ है विच विल बी डूइंग ऑन लेटेस्ट स्टेज। लेटेस्ट स्टेज मतलब वंस वी हैव थोड़ा सा एम्पल ऑफ टाइम, उस दिन अपन डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड केस स्टडी ऑफ चैप्टर 1। Right now, before going on this point of audit reporting, I hope you have revised certain things of chapter 7. तो मैं चीजें क्या क्या डिस्कस कर रहा हूँ सबसे पहला। In chapter 7, if you remember, there is a form of opinion. Form of opinion. There are two forms of opinion. One form is unmodified and one form is modified as per 700. I hope ये भी याद होगा आपको that modified then. Now when we give modified, okay, when we give modified, there are two situations. One, fs are misstated, materially misstated, or second point is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence. I hope ye bhi yaad hoga aapko, you are not able to obtain sufficient appropriate audit evidence. Now the question is, okay, if these two situations are and situations or situations, it is or situations, or either this or this. Okay, any of the situations come, you need to modify your opinion according to 705. 705 says you can modify opinion in three aspects. One is qualified, one is adverse, and one is disclaimer of opinion. These three aspects, what are the three aspects need to be focused on? Okay, I hope you remember qualified can be done, okay, in two scenario. One, fs are misstated, okay, and the item is material but not pervasive, not pervasive. Okay, yani what is the scenario? The scenario is you identified that financial statements are misstated. You identified some financial statements are misstated, but the item is material, but it is not pervasive. Sir, what is the meaning of pervasive? So pervasive, I hope you remember, pervasive goes with three elements, three factors as such. Factors, what are the three factors for pervasive, buddy? There are three factors for pervasive. First, pervasive is not confined to single element or single item of financial statement. Second is if it is so confined, if it is so confined मतलब it is a single element के लिए है, then the amount is substantial, the portion is substantial है. And next, it is fundamental for user to know. Okay, then about a disclosure, it can be pervasive. डिस्क्लोजर के लिए ये परवेजिव हो सकता है। सर ये तीनों चीजें क्या बोल रही है, प्लीज डू अंडरस्टैंड। फर्स्ट, इट इज नॉट कन्फाइंड टू सिंगल एलिमेंट, यानी एग्जांपल, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वन असर्शन टू असर्शन, ऐसे आइटम आइडेंटिफाइड नहीं है। आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द आइटम। एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग, okay, if I'm saying the thing is very clear, not confined to single element, means if I'm saying data में misstatement है, it means it is not pervasive, it is not pervasive। मैं बोल रहा हूँ भाई क्रेडिटर में मिसस्टेटमेंट है, मैं बोल रहा हूँ क्रेडिटर में मिसस्टेटमेंट है, मैं बोल रहा हूँ डिप्रीशिएशन में गड़बड़ है, मैं बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो, इट मींस इट इज नॉट परवेजिव। ओके, बिकॉज इट इज नॉट कन्फाइंड विद सिंगल एलिमेंट। इफ इट इज कन्फाइंड विद सिंगल एलिमेंट, इट इज नॉट परवेजिव। इफ इट इज नॉट कन्फाइंड विद सिंगल एलिमेंट, इट इज परवेजिव। Then what is an example? Or OFU only, OFU matlab only for understanding. This is what I usually use the word. Or what is an OFU? Only for understanding, for not confined to single element. Example, okay, I am not having a confidence on income and income statement as such. Income statement will include receipt, sales होगा, okay, purchase होंगे, other expenses होंगे, ये सब है। इस पे मुझे evidences नहीं मिल रहे हैं, okay, sorry, इसके ऊपर मुझे item पे मतलब मेरे को misstatement मिला, जो भी मिला हुआ है, इसको अपन बोलते हैं not confined to single financial statement। ओके, सिंगल आइटम है सच। ओके, अगर सिंगल आइटम पे है तो परवेजिव नहीं है, सिंगल आइटम नहीं है और बहुत सारा इंपैक्ट है, इसको हम परवेजिव बोलते हैं। लेकिन अगर इफ इट इज सो कन्फाइंड ऑन सिंगल आइटम ऑल्सो, अगर वो सिंगल आइटम के लिए है लेकिन अमाउंट सब्सटेंशियल है, तो भी परवेजिव माना जाएगा। एग्जाम्पल, इन्वेंट्री है। अब इन्वेंट्री बोला तो ये परवेजिव नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री मतलब एक आइटम है। लेकिन अगर इन्वेंट्री 20 करोड़ की बैलेंस शीट है, 20 करोड़ में से 15 मतलब 8 करोड़ इन्वेंट्री है, नाउ इट इज परवेजिव बिकॉज द अमाउंट इज सब्सटेंशियल। तो पहला, इट इज नॉट कन्फाइंड टू सिंगल आइटम। ओके, पहला, इट इज नॉट कन्फाइंड टू सिंगल आइटम। सेकंड, इफ इट इज कन्फाइंड, ओके, देन अमाउंट इज सब्सटेंशियल। एंड थर्ड, इट इज फंडामेंटल फॉर डिस्क्लोजर। अगर डिस्क्लोजर रिलेटेड है तो फंडामेंटल टू द यूजर है। तो परवेजिव आपको कैसे देखना है, ये तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखे परवेजिव देखना है। ओके, तो परवेजिव के लिए ये पॉइंट रहेगा। सेकंड पॉइंट, क्वालिफाइड में, अगर मैं क्वालिफाइड की बात करूं तो और एक आइटम आता है, इफ यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस and the effect of undetected misstatement। वर्ड याद रखना, अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, बिकॉज यहां पर मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हुए नहीं है। ओके, द इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड, हाँ, पॉसिबल इफेक्ट, सॉरी, इफेक्ट नहीं है, पॉसिबल इफेक्ट, पॉसिबल इफेक्ट। आई होप ये वर्ड याद रहेगा।
पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, यानी जो मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं हुए हैं, द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज ओके मटेरियल बट नॉट परवेजिव। ओके आई होप ये समझ में आया, नॉट परवेजिव। तो टेक्निकली क्वालिफाइड आप कब दोगे? दो सिचुएशन में। पहला सिचुएशन होगा ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटेड है और आइटम मटेरियल है और परवेजिव नहीं है। दूसरा, यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट वंस एंड द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दैट आइटम ऑन अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट मतलब आपने डिटेक्ट नहीं किया है, मिसस्टेटमेंट आपसे डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो पॉसिबल इफेक्ट ऑन अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल बट नॉट परवेसिव। तो इस केस में क्वालिफाइड दोगे। तो एडवर्स कब दोगे? एडवर्स कब दोगे? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड एंड इट इज परवेसिव। परवेसिव। सर डिस्क्लेमर कब दोगे? डिस्क्लेमर व्हेन यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, व्हेन यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड इट इज मटेरियल एंड परवेसिव। ओके ये मटेरियल एंड परवेसिव क्या है? इफेक्ट, पॉसिबल इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ किसका? पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। ओके अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, ये ध्यान रखना, अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। ओके तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझने लायक है, जो याद रखने लायक है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखने लायक है, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड बोलते हैं तो क्या इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला है? आंसर इज यस, इट इज मिला है। इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट की इफेक्ट। ओके लेकिन अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट वंस है, क्या इधर अपने को मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला है? नहीं, चांस है ना, इसीलिए पॉसिबल इफेक्ट ऑन अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अगर अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल है पर परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड बोलेंगे, अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल है और परवेसिव भी है तो हम डिस्क्लेमर बोलेंगे। टेक्निकली आप दिमाग में रख लेना डिस्क्लेमर का मतलब क्या है। डिस्क्लेमर का मतलब है हम ओपिनियन नहीं दे रहे, हम बोल नहीं रहे अच्छा है, हम बोल नहीं रहे खराब है। We are disclaiming our opinion. We are not giving my opinion. I am not giving an opinion. Either it is unmodified, it is modified. Okay. See, I can say मैं क्या बोल सकता हूँ मैक्सिमम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे है, या तो मैं बोलूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है। आई होप एवरीबडी क्लियर। मैं तो ये बोलूंगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है। अब मैं जब ये बोल ही नहीं रहा हूं तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है। तो मेरे ख्याल से पहला फॉर्म ऑफ ओपिनियन ये सबको याद आया, ये सबको दिमाग में याद है बड़ी, सबको दिमाग में याद है। मैं सब रिफ्रेश मार रहा हूँ, गोइंग कंसर्न एंड अदर थिंग्स का पॉइंट। ओके सारे सारे एलिमेंट्स को अपन देख ले रहे हैं, तो ध्यान देना बड़ी। ओके और एक कॉन्टेक्स्ट में ध्यान देना। अब मैं बात करता हूँ और एक 700 में क्या होता है। 700 में 700 की बात कर रहा हूँ, 700 की बात कर रहा हूँ। देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में अपन डिवाइड करेंगे तो 13 पैराग्राफ आते हैं। 13 पैराग्राफ आते हैं। ओके 13 पैराग्राफ कौन से होते हैं? ओके 13 पैराग्राफ कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है टाइटल, सेकंड होता है एड्रेसी, थर्ड होता है ओपिनियन, फोर्थ होता है बेसिस फॉर ओपिनियन, फिफ्थ आता है गोइंग कंसर्न, सिक्स आता है की ऑडिट मैटर, सेवेंथ आता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एट आता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, 9 आता है लोकेशन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, 10 आता है अदर रिपोर्टिंग, यानी लॉ के रेगुलेशन के हिसाब से कारो हो गया, सेक्शन 143 हो गया, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, 11 सिग्नेचर प्लेस एंड डेट। आई होप ये 13 पॉइंट सबको याद होंगे। टेक्निकली 13 पॉइंट में ओपिनियन पैराग्राफ में क्या क्या है ओके वो अपने को याद देना चाहिए। सबसे पहले वी हैव, सबसे पहले अपन बोलेंगे ओके एंटिटी कौन सी है, एंटिटी कौन सी है, वी हैव ऑडिटेड ये लिखेंगे। उसके बाद टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे, रिफर टू समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसा लिखेंगे। एंड उसके साथ में और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे ओके पीरियड क्या है, डेट क्या है। आई होप सबको याद आ रहा है क्या? बढ़िया ठीक है। एट द सेम टाइम इसके साथ में अपन ओपिनियन लिखेंगे। सर ओपिनियन जब अनमॉडिफाइड दूंगा तो क्या लिखूंगा? इन आवर ओपिनियन अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर ओके इन अकॉर्डेंस विद AFRF। अगर ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है और अगर ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो हम ये बोलेंगे इन आवर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स आर इन अकॉर्डेंस विद AFRF। ये हम लोग तब देंगे जब कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा। और अगर फेयर प्रेजेंट फ्रेमवर्क के लिए और एक वर्डिंग कौन सी होगी? प्रेजेंट फेयरली। लेकिन प्रेजेंट फेयरली आया और ट्रू एंड फेयर आया तो वर्डिंग को यूज करते वक्त ध्यान रखना। ओके ट्रू एंड फेयर आया तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इन आवर ओपिनियन अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन आवर ओपिनियन अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर इन अकॉर्डेंस विद AFRF। इसमें बस इतना ही लिखते हैं, ट्रू एंड फेयर इन अकॉर्डेंस विद AFRF। लेकिन अगर ये प्रेजेंट फेयरली वर्ड यूज करना है तो हम लोग ऐसा बोलते हैं इन आवर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके आर प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद AFRF। यानी हम मटेरियल रिस्पेक्ट को वर्ड यूज करते हैं, मटेरियल रिस्पेक्ट्स कब यूज करते हैं? प्रेजेंट फेयरली। ट्रू एंड फेयर में मटेरियल रिस्पेक्ट वर्ड यूज नहीं किया जाता। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में भी मटेरियल वर्ड यूज किया जाता है इन ऑल मटेरियल। तो आपको देखना होगा कौन सा फ्रेमवर्क है, उसके हिसाब से ओपिनियन देना होगा। सर बेसिस फॉर ओपिनियन, आई होप सबको याद होगा बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या लिखते हैं। 4 चीजें लिखते हैं। हमने स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट किया था। सेकंड सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, अगर आपको याद है, हमने ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी फुलफिल की है, पैरा नंबर आगे 8 दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है
ओके हमने इथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस का ध्यान रखा हुआ है एंड हम बिलीव करते हैं हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट वंस लिया है। मेरे ख्याल से ये चारों चीजें क्लियर है। ओके अब गोइंग कंसर्न के ऊपर मैं थोड़ा सा टेक्निकली डिस्कस करता हूँ 5 मिनट के बाद, लेकिन उसके पहले थोड़े से अलग पॉइंट कवर कर लेता हूँ। ओके की ऑडिट मैटर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरह की है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बनाएगा, इंटरनल कंट्रोल वो डालेगा एंड गोइंग कंसर्न का एजम्पशन उसने चेक करना चाहिए। ये हम लिखेंगे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर आपको याद होगा तो 3 सेक्शन डाले हुए हैं। 3 सेक्शन कौन से डाले हुए हैं? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ओके तीनों सेक्शन में अपना अपना काम है। सेक्शन 1 में हमने क्या लिखा होगा? सेक्शन 1 में हमने ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में लिखा होगा हमारा काम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है। ओके इसके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट कंप्लाई करके ओपिनियन देना, रीजनेबल एश्योरेंस लेना। सेकंड पॉइंट हमने गारंटी नहीं दी है, हमने रीजनेबल एश्योरेंस दिया हुआ है। एंड थर्ड पॉइंट ओके हमने जो भी आइटम मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियलिटी के ऊपर वाले हाईलाइट किए हैं, बिलो दैट वी हैव नॉट हाईलाइटेड। आई होप सेक्शन 1 क्लियर है। सेक्शन 2 में हमने काम कैसे किया? ओके सबसे पहला पॉइंट वी हैव बीन स्केप्टिकल एंड वी हैव मेक जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट। सेकंड हमने काम के दौरान क्या किया? ड्यूरिंग आवर वर्क वी हैव एंश्योर्ड we have asset RMM. Second, we have checked the internal control. Okay. Third point, we have ensured accounting policies, accounting estimates and disclosures are appropriate. Fourth, okay, SPC structure, presentation, content is appropriate. And last point, okay, we also ensure that going concern assumption we have checked it out. Going concern assumption लेने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, but we have checked the appropriateness of going concern assumption and that is okay. ओके और एक पॉइंट रहेगा यूजिंग 600 इफ इट रिक्वायर्ड। परफेक्ट बड़ी तोड़। ओके एंड आफ्टर दैट सेक्शन 3 में होगा हमने ऊपर वाले से बात की है। हु इज ऊपर वाला? TCWG, दोज हु आर चार्ज विद गवर्नेंस। वी हैव डिस्कस्ड द मैटर विद TCWG। ओके 3 मैटर वी हैव डिस्कस्ड। इन फर्स्ट मैटर वी डिस्कस्ड टोटल 4 पॉइंट्स एंड दिस इज पार्ट ऑफ 260 आल्सो। ओके वी हैव डिस्कस्ड स्कोप, वी हैव डिस्कस्ड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, वी हैव डिस्कस्ड सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, वी हैव डिस्कस्ड सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। तो पहले पॉइंट में हम लिए 4 वर्ड लिखेंगे। सेकंड वी हैव इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी वी हैव डिस्कस्ड इट इन इथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस में हमको क्या दिक्कत आई क्या नहीं आई उसके लिए किया हुआ है। एंड लास्ट पॉइंट ओके वी आल्सो डिस्कस की ऑडिट मैटर व्हिच आर वी आर कम्युनिकेटिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस विद ओके TCWG। आई होप तीनों सेक्शंस क्लियर है। आई होप आपको याद आ गया मोटा मोटी। लोकेशन में सर कितनी चीजें है? लोकेशन का कॉन्सेप्ट है 3 चीजें सर। वी कैन पुट दिस ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ लोकेशन ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ इन 3 places, either of 3 places. First we can put an appendix, second within the body and third with on the website can be of an regulatory authority. I hope ये याद होगा। ओके फिर से अदर रिपोर्टिंग ओके सेक्शन 133 कारो ये सब में रेफरेंस इधर लिखेंगे अपन। अगर कारो की रिपोर्टिंग है तो इधर आ जाएगा। ओके सिग्नेचर प्लेस डेट आई होप आपको याद होगा। सिग्नेचर जब भी देंगे तो सिग्नेचर देते वक्त आपको नंबर देने पड़ेंगे 3 नंबर। सबसे पहले होगा आपका मेंबरशिप नंबर, फिर होगा आपका फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर और एक यूडीआईएन नंबर देना पड़ता है। यूडीआईएन नंबर आपको देना पड़ेगा। यूडीआईएन नंबर यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये कोड ऑफ एथिक्स में भी आपको आएगा। आफ्टर दैट प्लेस कौन सा होगा वहां पर साइन किया है एंड डेट। आई होप आपको कल की चीज याद आए। डेट के अंदर कल के लेक्चर में अपने डिस्कस किया था डेट के अंदर कौन सा डेट होना चाहिए? इट शुड नॉट बी अर्लियर देन 2 थिंग्स। ओके फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सेप्टिंग देयर रिस्पांसिबिलिटी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ बाय देम। एंड सेकंडली ओके सेकंड पॉइंट इज वी हैव ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट फंड्स। लेकिन आपने कभी भी याद रखने का व्हेनेवर वी रिवाइज दिस थिंग व्हाट शुड बी द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो आपने याद रखने का 2 चीज SAAE प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्टेड बाय whom। ओके एक्सेप्टेड बाय whom? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पर ये एक्सेप्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लिखते कैसे है? दैट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके वो कांसेप्ट आता है TCWG मतलब। ओके ये है, ये 2 का पॉइंट है। और अगर मैंने बोला लिस्टेड कंपनी का ऑडिट है तो डेट क्या होना चाहिए? लिस्टेड कंपनी के ऑडिट में अगर मैंने बोला लिस्टेड कंपनी का ऑडिट है डेट में और एक चीज ऐड करनी चाहिए। कौन सी वाली चीज ऐड करनी चाहिए? EQCR के बाद का डेट होना चाहिए, नॉट अर्लियर देन। याद रहेगा बड़ी? ओके तो आपने ऐसा याद रखना है। तो यूकी अगर लिस्टेड कंपनी का ऑडिट है तो ये 3 डेट्स इसके पहले नहीं होनी चाहिए। अगर ये अनलिस्टेड है या कुछ भी है तो EQCR कंपलसरी नहीं है, तो बाकी 2 चीजों के ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप ऑडिट रिपोर्ट का सारी कहानी आपको मोटा मोटी सब याद आ गई। ओके अब ये कहानी को और बढ़ाते हुए ओके वन मोर एलिमेंट आई एम इंटीग्रेटिंग हियर एंड दैट एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फोकसिंग ऑन द गोइंग कंसर्न। अब याद रखना ऐसे 570 की रिपोर्टिंग में गोइंग कंसर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ओके 4 सिचुएशंस मैं आपको दे रहा हूँ। ओके 1 सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, फोर्थ सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग कंसर्न assumption इज एप्रोप्रिएट। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएट? धंधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर में कुछ मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं दिख रही है। क्या नहीं दिख रही है बड़ी? मटेरियल अनसर्टेनिटी। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी? मटेरियल अनसर्टेनिटी मतलब आप जब 570 पढ़ोगे उसमें आपको मालूम पड़ेगा 570 मटेरियल अनसर्टेनिटी मतलब ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा है जिससे गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे दिक्कत आए। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे दिक्कत आने के लिए मटेरियल अनसर्टेनिटी? एग्जांपल क्रेडिटर ने अपना क्रेडिट पीरियड हटा दिया है। ओके आपको कोई गुड्स नहीं दे रहा है, आपका माल बिक नहीं रहा है, कंपटीशन भयंकर हो गया है, आपका की मैनेजरल पर्सनल की डेथ हो गई है, लिटिगेशन ऐसा है जो एक्सेप्शनल है, लग जाएगी आपकी, दैट इज मटेरियल अनसर्टेनिटी। तो एप्रोप्रिएटनेस कैसा है, मटेरियल अनसर्टेनिटी कैसी होगी और उसमें
में डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं दिया है, ये पॉइंट भी आपको देखना है, और उसके बेसिस पे ऑडिटर क्या करेगा ये डिस्कस करेंगे। तो ऑडिटर क्या करेगा वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहला सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, अप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, डिस्क्लोजर की जरूरत ही नहीं है, ऑडिटर देगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन। कौन सा ओपिनियन? अनमॉडिफाइड ओपिनियन एज पर 700। ये झेपा क्या? ये झेपा क्या सबको? ओके, इसमें कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, अप्रोप्रिएट क्वेश्चनेबल है। ओके, क्वेश्चनेबल क्यों है सर? क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चनेबल है सर। क्वेश्चनेबल क्यों है? क्योंकि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है सर। मैंने से मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है मतलब आपको मालूम है आपकी प्रोडक्ट की बैंड बजने वाली है, बजी नहीं है, बजने वाली है। ओके, इन फ्यूचर देयर इज अ डाउट नाउ। ओके, इन फ्यूचर देयर इज अ डाउट, प्रोबेबली कॉन्ट्रैक्ट आपका था वो कैंसिल हो गया, प्रोबेबली आपको रॉ मटेरियल सप्लायर था देने वाला था वो देने बंद कर दिया, कैश से क्रेडिट पे आ चुका है, क्रेडिट से कैश पे आ चुके हैं, ऐसे प्रॉब्लम चालू ही है। अभी तक पूरी तरह बैंड नहीं बजी है, लेकिन मैं वापस बोल रहा हूँ अप्रोप्रिएट क्वेश्चनेबल है। ओके, ये इनअप्रोप्रिएट नहीं है, इनअप्रोप्रिएट होगा आंसर अलग ही होगा। ओके, पर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो इस केस में डिस्क्लोजर भी मैनेजमेंट ने दिया है। मैनेजमेंट ने सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्लोजर? नोट नंबर 13 जाके देखो, नोट नंबर 13, मैं 13 बोल रहा हूँ 13 बोल रहा हूँ, इट डजंट मीन 13 ओनली रहेगा। तो नोट में डिस्क्लोजर दिए होंगे। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो सर इसमें ओपिनियन कौन सा देना चाहिए? इसमें ओपिनियन देना चाहिए अनमॉडिफाइड ओनली। ओपिनियन कौन सा आना चाहिए? अनमॉडिफाइड प्लस। ओके, ये पैरा नंबर 5, पैरा नंबर 5 जो है ना, गोइंग कंसर्न वाला पैराग्राफ, गोइंग कंसर्न वाला पैराग्राफ समझ में आ रहा है? यहाँ पर अपन ने उसमें लिखना चाहिए देयर इज, क्या लिखना चाहिए? देयर इज मटेरियल अनसर्टेनिटी। Okay, by material uncertainty which is related to organization. Okay, now here management has given their representation, ये लिखना चाहिए इन नोट नंबर 13। उधर जाके पढ़िए। लेकिन एक स्टेटमेंट और डाली है कि इसकी वजह से ओपिनियन चेंज नहीं हुआ है, इट इज समथिंग लाइक ईओएम जैसा ही, इसकी वजह से ओपिनियन चेंज नहीं हुआ है। आई होप झेपा के मालिक। ओके, यानी अगर जब नोट नंबर 5 में डालोगे, नोट नंबर 5 में डालोगे तो मेक श्योर यू आल्सो राइट दिस वर्डिंग दैट यू हैव नॉट मॉडिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 इज ओनली मेकिंग यू अवेयर अबाउट द सर्टेन नोट्स एंड डिस्क्लोजर। आपको वही हाईलाइट करवाना है, इसीलिए आपने नोट नंबर 5 डाला है, बाकी उसकी वजह से आपका ओपिनियन चेंज नहीं हुआ है। ओके, ये समझ में आया बड़ी? ओके, ये पॉइंट ध्यान रख लीजिए। अब इसके साथ में क्वेश्चन आता है, सर ये क्वेश्चनेबल है, ये अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन डिस्क्लोजर नहीं दिया, मैनेजमेंट नोट डिस्क्लोजर नॉट गिवन, नॉट गिवन, मैनेजमेंट नोट नहीं दे रहा है। सर अब इसमें आंसर क्या रहेगा आपका? इसमें आंसर रहेगा मॉडिफाइड। सर मॉडिफाइड में कौन सा हो सकता है? मॉडिफाइड में इट कैन बी क्वालिफाइड और एडवर्स डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। टेक्निकली क्वालिफाइड ही होगा, टेक्निकली मैक्सिमम टाइम आप क्वालिफाइड ही करोगे, लेकिन क्वालिफाइड और एडवर्स दोनों में से कोई भी हो सकता है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, क्वालिफाइड और एडवर्स हो सकता है। ओके, इसमें नोट पैरा नंबर 5 डालने की जरूरत नहीं है, इसमें पैरा 5 आएगा ही नहीं क्योंकि ओपिनियन चेंज हो रहा है ना। तो ओपिनियन चेंज हो रहा है तो आपका तीसरा पैराग्राफ तो खराब हो ही रहा है ना। तो तीसरा पैराग्राफ खराब हो रहा है तो नोट की तरफ लेके क्यों जाएगा? पैरा नंबर 5 कब आता है? जब नोट डाला होगा। इधर नोट डाला है क्या? इधर नोट डाला है क्या? तो पैरा नंबर 5 में क्या लिखेगा? रिफर नोट थोड़ा है, तो पैरा नहीं जाएगा, तो इधर पैरा नंबर 5 मत लिखना। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो इसमें डायरेक्टली क्वालिफाइड एडवर्स है, और क्वालिफाइड एडवर्स जब भी होता है तो मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा बेसिस फॉर ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा। बेसिस फॉर ओपिनियन बिकम बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन। ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, एंड आफ्टर दैट वन मोर पॉइंट। ओके, गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज इनएप्रोप्रिएट। क्या है बेटा? इनएप्रोप्रिएट। सर इनएप्रोप्रिएट मतलब ठुक गई है, ठुक गई है। ओके, मटेरियल अनसर्टेनिटी बात ही मत करो, सीधा सीधा ओपिनियन कौन सा होगा बेटा? एडवर्स। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? ठुक गई है, ठुक गई मतलब अभी कैंसिल हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुके हैं, तुम्हें काम नहीं मिल रहा है, कस्टमर तुम्हारा प्रोडक्ट पसंद नहीं कर रहे हैं। ओके, तुम्हारा जो लॉ रेगुलेशन ने बैन कर दिया तुम्हारे प्रोडक्ट को, बैन कर चुके हैं, करने वाले नहीं है, कर चुके हैं। तो ये थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम में फर्क समझा गया? थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम में। ओके, नेगेटिव कैश फ्लो तो ठीक है, नेगेटिव कैश फ्लो इसमें भी हो सकता है, लेकिन इसमें अभी भी उम्मीद बाकी है। ओके, बाकी क्यों है? रीजन सिंपल है। ओके, क्योंकि क्वेश्चनेबल है, डिस्क्लोजर नहीं दे रहा है, क्वेश्चनेबल हुआ है, पर यहाँ पर इनएप्रोप्रिएट है, यहाँ पर सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। ओके, यहाँ पर सब खत्म हो चुका है, इसीलिए आपको एडवांस देना है। ठीक है, और एक सर्कमस्टेंस इसके अंदर आता है जो मैं इधर लिख नहीं रहा हूं कि वो रिपोर्टिंग के हिसाब से है नहीं। ओके सर, क्यों? क्योंकि टेक्निकली अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न एजम्पशन का, अगर देखो ये सिनेरियो के लिए और एक सिनेरियो समझो, ये सिनेरियो में ऐसा हो सकता है मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न एजम्पशन किया ही नहीं होगा, एप्रोप्रिएटनेस चेक ही नहीं किया होगा। तो यहाँ पर अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन एप्रोप्रिएटनेस चेक नहीं किया मैनेजमेंट ने, तो मैनेजमेंट को जाके आप बोलिए प्लीज डू or perform the going concern assumption का appropriateness, check that going concern assumption is valid or not. ओके, और फिर मैनेजमेंट करने के बाद आप देखिए इसमें डालोगे या इसमें डालोगे, वो देख लीजिए। लेकिन अगर मैनेजमेंट करने को रेडी ही नहीं है तो ये वाला कैटेगरी बैठते जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि भाई मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न assumption असेसमेंट कर ही नहीं रहा है, तो आप किस में डालोगे? मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न assumption असेसमेंट कर ही नहीं रहा है तो किस में डालोगे? आप थर्ड पैराग्राफ में डालोगे, थर्ड वाला कॉन्टेक्स्ट डालोगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, तो मेरे ख्याल से चारों के चारों कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में बैठ गए बड़ी। तो आई होप ये चारों पॉइंट क्लियर है। तो गोइंग कंसर्न अच्छे से बैठा अभी दिमाग में रहेगा।
ओके देखो, आई नीड टू मैनेज इट आउट, रीजन सिंपल है क्योंकि इसका जब अपन टीआरबी रिवीजन करेंगे जो फेब एंड या मार्च फर्स्ट वीक में अपन करने वाले हैं, ओके चैप्टर वाइज, ओके डेफिनेटली उस टाइम पे कवर होने वाला है। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहा हूँ और ये कल यश से डिस्कशन हुआ था तो पॉइंट ये है, तो मैं इसको समझाता हूँ। आई होप जितना भी रिसेंबल चाहिए, और पैरा 5 कब आता है, पैरा 5 क्यों आना चाहिए, कब आना चाहिए, ये एटलीस्ट मालूम पड़ना चाहिए थ्योरेटिकल से। तो ब्रीफिंग से मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, ओके अगर मैंने ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई किया, अगर मैंने ओपिनियन मॉडिफाई किया, कितने प्रकार के ओपिनियन मॉडिफाइड है, ओके दो प्रकार, दो तीन प्रकार, वन इज क्वालिफाइड, वन इज एडवर्स, वन इज डिस्क्लेमर। सर अगर क्वालिफाइड हुआ, एडवर्स हुआ, डिस्क्लेमर हुआ, तो इसमें से कौन से पैराग्राफ चेंज होता है? तो याद रखना, इसमें से जो पैराग्राफ चेंज होता है वो ओन मेजर पैराग्राफ चेंज, एक ओपिनियन पैराग्राफ और बेसिस फॉर ओपिनियन। मतलब ओपिनियन मतलब क्या, आपका जो ओपिनियन था ना लास्ट वाला, इन आवर ओपिनियन, ओके अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके इन आवर ओपिनियन अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा लिखा था ना, वो वर्डिंग चेंज हो जाएगी, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट फॉर द रीजन मेंशन्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, और बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, और बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जो भी रहेगा, ओके मेनली है ना ये चेंज होता है, mainly this is change, okay, so basis for opinion will become basis for qualified opinion, basis for adverse opinion, basis for disclaimer of opinion। I hope ये पॉइंट क्लियर। तो बेसिस फॉर क्वालिफाई ये हो जाएगा, ओके और कुछ चेंज होता है क्या? तो देखो पहला पॉइंट तो आप दिमाग में रखो, बेसिस फॉर क्वालिफाइड और बेसिस ऑफ एडवर्स के लिए ना, ओके पहला चीज तो ये चेंज कर दो दैट, ओके एकदम क्लियर कर रखना, बेसिस चेंज हो जाएगा। सेकंड ओपिनियन वर्डिंग चेंज होगा, एंड थर्ड ओके ये जो बेसिस फॉर ओपिनियन, अगर बेसिस फॉर ओपिनियन बिकम basis for opinion become basis for qualified और adverse, ये हो जाएगा। डिस्क्लेमर में भी यही है, लेकिन क्वालिफाइड एडवर्स समझ रहे हो, ओके तो ये वी हैव कंप्लाइड विद स्टैंडर्ड ये लिखेंगे, वी हैव कंप्लाइड विद ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी ये लिखेंगे, इथिकल रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस ये लिखेंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट लिखते वक्त हम लिखेंगे वी बिलीव दैट वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू फॉर्म ओके अ क्वालिफाइड ओपिनियन और टू फॉर्म एन एडवर्स ओपिनियन। समझ में आ रहा है? मतलब इधर क्या लिखा था मालूम है, जब अनमोडिफाइड था ना तो हमने लिखा था वी बिलीव दैट वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड वी हैव ऑब्टेन्ड ऑडिट एविडेंस व्हिच इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट टू फॉर्म बेसिस फॉर ओपिनियन। लेकिन जब बेसिस फॉर क्वालिफाइड होगा और बेसिस फॉर एडवर्स होगा, हम लोग के वर्डिंग होंगे वी बिलीव दैट वी हैव ऑब्टेन्ड ऑडिट एविडेंस व्हिच इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट टू फॉर्म क्वालिफाइड ओपिनियन टू फॉर्म एडवर्स ओपिनियन। इज दैट पॉइंट क्लियर? लेकिन डिस्क्लेमर में याद रखना सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिस्क्लेमर है, तो याद रखो डिस्क्लेमर में क्या क्या आएगा, ओके डिस्क्लेमर में क्या क्या आएगा, मेक श्योर ये ध्यान रखना। जब मैं डिस्क्लेमर की बात करूंगा तो याद रखिए व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट डिस्क्लेमर में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, ओके ओपिनियन बेसिस फॉर ओपिनियन विल बिकम बेसिस फॉर डिस्क्लेमर। ओके सर यहाँ पर क्या दूंगा, यहाँ पर रीजन दूंगा व्हाई यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट, ये रीजन दूंगा। सेकेंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ कट जाएगा, ओके बेसिस में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ 8 पैराग्राफ कट जाएगा, एंड इंस्टेड ऑफ 8 पैराग्राफ ओके 3 पॉइंट आपको लिखने होंगे, ओके शायद आपको याद हो ये क्लास में बहुत अच्छे से कवर है, ओके 3 पॉइंट क्या लिखने हैं। सबसे पहला ओके वी हैव बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर टू फॉर्म ए टू प्रोवाइड एन ओपिनियन बाय कंप्लाइंग विद एसए इशूड बाय आईसीए, तो हमने ये है। सेकेंड हम लिखेंगे बट वी वर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर द रीजन मेंशन्ड इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर पैराग्राफ, एंड थर्ड वी हैव कंप्लाइड विद एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस। यानी इंस्टेड ऑफ आप समझने की कोशिश करो, इंस्टेड ऑफ बेसिस फॉर क्वालिफाइड बेसिस फॉर ओपिनियन के जो लाल है ना ये ऑलमोस्ट सब कट जाएंगे और इसमें सिर्फ हम रीजन लिखेंगे, एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ पूरी तरह कट जाएगा और उसकी जगह ये दोनों पैराग्राफ का कॉम्बिनेशन इधर लिखा जाएगा जो मैंने अभी स्क्रीन पर बताया, हमेशा ये रहेगा। और इसके अलावा अगर आप बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो तो की ऑडिट मैटर कभी नहीं आएगा। कौन सा नहीं आएगा? की ऑडिट मैटर भी नहीं आएगा। रीजन सिंपल है, की ऑडिट मैटर क्यों नहीं आएगा? और की ऑडिट मैटर तब आता है जब ऑडिट होता है, ऑडिट ही नहीं हुआ तो की ऑडिट मैटर कहां से आएगा बड़ी? कैन वी क्लोज ऑन दिस नाउ? तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके अब ये होने के बाद मतलब ऑलमोस्ट मोटा मोटी आई हैव रिफ्रेश्ड इट आउट ऑलमोस्ट 700-705 का कॉन्टेक्स्ट। अलोंग विद दिस वन मोर पैराग्राफ इज देयर दैट इज कॉल्ड यूएम पैराग्राफ एंड ओएम पैराग्राफ। यूएम पैराग्राफ क्या होता है अगर आपको मालूम होगा, यूएम पैराग्राफ इज बेसिकली एन एम्फसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ, द पैराग्राफ व्हिच हैज बीन appropriately defined, appropriately mentioned in financial statement, but it need to be highlighted by auditor. This is called emphasis of matter paragraph. Okay, but make sure emphasis of matter paragraph is not a modified opinion. It is not a modified opinion. It is only I want to highlight a paragraph. It's something like what we discuss in going concern of paragraph. Going concern में नहीं देखा गया अपन को हाईलाइट करना, वैसे ही ईओएम पैराग्राफ में अपन हाईलाइट करते हैं। बस याद रखना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईओएम पैराग्राफ एंड ओएम पैराग्राफ।
ईओएम पैराग्राफ, ओके, ईओएम और ओएम में कैसे डिस्टिंग्विश करें? इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैटर को हाईलाइट करना है, वापस मैं बोल रहा हूँ, ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैटर को क्या करना है? हाईलाइट करना है, तो ईओएम। एंड ऑडिट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिट रिपोर्ट, अगर इनके बारे में कुछ हाईलाइट करना है तो ओएम पैराग्राफ। तो तीन चीजों के बारे में हाईलाइट करना है तो ओएम पैराग्राफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हाईलाइट करना है तो यूएम पैराग्राफ। यानी मेरे को बताना है कि शेयर होल्डर नोट नंबर 13 जाके पढ़ो तो कौन सा पैराग्राफ होगा? यूएम। और मैं बोल रहा हूँ भाई यार मेरे को ऑडिट, मैं ऑडिटर था, मेरे को रिजाइन करना था बट नहीं कर सका क्योंकि सेबी की रिस्ट्रिक्शन आ गई, वट एवर इट में भी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये कौन से पैराग्राफ में डालूंगा? ओएम पैराग्राफ। आई एम ऑल्सो ए जनरल पर्पस फ्रेमवर्क ऑडिटर, आई एम ऑल्सो ए स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क ऑडिटर, मेरे को ये बताना है, किस में डालूंगा? ओएम पैराग्राफ। ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर, ये ओएम पैराग्राफ में आएगा। यूएम पैराग्राफ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैटर आएंगे। ओके, तो ये यूएम एंड ओएम का पॉइंट ध्यान रखना। ओके, इज यूएम क्वालिफिकेशन? इज यूएम क्वालिफिकेशन? आंसर इज नो। यूएम क्वालिफिकेशन नहीं होता है, यूएम सिर्फ हाईलाइट करना होता है। तो अब याद रखना यूएम कब नहीं आएगा, तो दो केसेस में यूएम कभी नहीं आएगा। ओके, 706 एंड सॉरी 705 एंड 701। अगर आपके ऑडिट रिपोर्ट में 705 है यानी मॉडिफाइड ओपिनियन है तो यूओएम नहीं डालोगे, और अगर 701 है की ऑडिट मैटर है तो आप यूओएम नहीं डालोगे। लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ, दिस इज रिस्पेक्टिव टू दैट मैटर। एग्जांपल, इन्वेंट्री में झोल है, इन्वेंट्री में झोल है तो आप क्या करोगे? मॉडिफाइड 705। इन्वेंट्री में झोल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल मिसस्टेटेड, तो यू विल यूज 705। इन दैट केस यू विल नॉट रिफर यूएम पैराग्राफ। Okay, or contingent liability, contingent liability, you thought contingent liability is done with fraud, okay, you will go with 705. Okay, but contingent liability written in note number 13, so you will not insert which paragraph? UM paragraph. Okay, so you need to understand that one. So when we will not insert UM paragraph? When 700 and 705 is there and 701 is there, तब नहीं डालेंगे। and make it sure, okay, अभी 705 में हम लिख रहे हैं कि भाई कंटीजेंट लायबिलिटी, सपोज 705 नहीं है, 701 भी नहीं है, और कंटीजेंट लायबिलिटी हाईलाइट करना है मुझे, कंटीजेंट लायबिलिटी हाईलाइट करना है मुझे, हाईलाइट करना है। नोट नंबर 13 में लिखा हुआ है कंटीजेंट लायबिलिटी 500 करोड़ की है, 5 करोड़ की है, मुझे ये हाईलाइट करनी है शेयर होल्डर को। तो अब मैं एक पैरा डालूंगा। सर ये पैरा इंसर्ट किधर किया जाएगा? ये पैरा हमेशा आपका बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ के नीचे किया जाएगा। यानी एग्जांपल ऐसा हो जाएगा, टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, ईओएम पैराग्राफ, फिर आएगा गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। अब समझ रहे हो? तो ईओएम पैराग्राफ में हम लिखेंगे, ओके, शेयर होल्डर प्लीज रिफर द नोट नंबर 13 वेयर कंटीजेंट लायबिलिटी इज मेंशन, कंटीजेंट लायबिलिटीज ऑफ 5 करोड़ व्हिच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। ओके, दिस विल बी बिकमिंग a liability once the case is sustained or case is against the company has been proved out. This is what we will be writing. Now what happened, management say if you are writing this contingent liability paragraph in your note number 5 as a UM paragraph, I will avoid this paragraph in my financial statement. I will not write in my financial statement. मैनेजमेंट ऐसा बोल सकता है, मैनेजमेंट बोल सकता है मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालूंगा ही नहीं यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालने की जरूरत ही नहीं है इसको, काय के लिए डालूं मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? ओके, तो मेरा क्वेश्चन है, ओके, क्या हम इसको यूएम में डालेंगे तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अवॉइड कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। यूएम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेक श्योर, ये सेम केएम के लिए भी होता है, केएम और ईओएम का लॉजिक सेम लगाना, केएम और यूएम का लॉजिक सेम लगाना। ओके, इट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। भारत माता की जय। समझ में आया क्या बड़ी? आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको। ओके, आई होप ये समझ में आया रहेगा। ओके, तो याद रखना ये डिस्क्लोजर नहीं है, डिस्क्लोजर नहीं है, सेपरेट ओपिनियन नहीं है, ये गोइंग कंसर्न की रिपोर्टिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है। यानी अगर आप इस कॉन्सेप्ट में आप ये बोल रहे हो ये वाला सेकंड वाला कॉलम, ओके, तो आप बोल रहे हो एक काम करते हैं इसमें यूएम डाल देते हैं ना, इसमें यूएम डाल देते हैं क्योंकि नोट पैरा नंबर मतलब मैं नोट रेफर करने बोलूंगा ना। ओके, तो इट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर 570। मेक श्योर 570 की रिपोर्टिंग 570 से ही जाएगी, यूएम का इसमें नहीं जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। इवन आपको गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में डालना है और आपको ईओएम में डालना है, डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मेक श्योर अगर आप मॉडिफाइड कर रहे हो और ईओएम डाल रहे हो तो ईओएम में नहीं आएगा। ओके, और की ऑडिट मैटर आई होप सबको याद होगा। की ऑडिट मैटर तो सबसे तोड़ फेवरेट होना चाहिए। की ऑडिट मैटर, ओके, हम डिटरमाइन कैसे करते हैं? तो अगर आपको याद होगा आरएमएम वाले मैटर की ऑडिट मैटर बन सकते हैं या एसआर वाले मैटर बन सकते हैं। सेकेंडली, ओके, की ऑडिट मैटर में हम लोग वो मैटर लेते हैं जहां पर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, आई होप याद होगा। और इसके अलावा वन मोर पॉइंट इज की ऑडिट मैटर में कोई ट्रांजैक्शन जो सिग्निफिकेंट लग रहा है, कौन सा लग रहा है? सिग्निफिकेंट, कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन लग रहा है या इवेंट्स लग रहा है, वो की ऑडिट मैटर में डाल सकते हैं। तो हाउ टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर, हाउ टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर, लास्ट अटेम्प्ट में यही क्वेश्चन चला गया है। ओके, नवंबर के पेपर में, नवंबर 24 के पेपर में क्वेश्चन था डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे और इसका इंट्रो पैराग्राफ क्या होगा? तो इंट्रो पैराग्राफ एकदम सिंपल होगा। ओके, की ऑडिट मैटर हमने जो डिटरमाइन किया वो हमारे सिग्निफिकेंस वाले मैटर है, हमारे हिसाब से ये सिग्निफिकेंट है। और ये मैटर किससे कम्युनिकेट हो चुके हैं ऑलरेडी? दिस मैटर और ऑलरेडी कम्युनिकेटेड विद होम,
TCWG ऐसे ही कम्युनिकेट हो चुके हैं। एंड ओके, आर वी प्रोवाइडिंग एनी ओपिनियन ऑन दिस सिंगल मैटर? नो, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सेपरेट ओपिनियन। ये भी आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिखना होगा, सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे। आई होप जेपी मालिक। ओके, ये 5 मार्क का क्वेश्चन ही सेट का था ये दोनों वाला पॉइंट। ओके, तो नवंबर गैस में, बट इजी आंसर, कोई ऐसा बहुत हार्डकोर नहीं है। लेकिन की ऑडिट मैटर को लॉजिक याद रखना, और की मैटर इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर, ये अपने डिस्कस कर लिया। इवन ईओएम और की ऑडिट मैटर ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये दोनों के आंसर सिमिलर पॉइंट पे भी रख सकते हो आप। ओके, ये होने के बाद आपके कारो है, कारो में आपके 20 ऑड क्लॉजेज है जो आपको याद रखना है, क्लॉज की लिस्ट है। ओके, तो कारो के कॉन्टेक्स्ट में अपन क्लॉज की लिस्ट में आएंगे, तो क्लॉज की लिस्ट का कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे। तो कारो को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर कारो का बीच में आता है तो मैं इसको होल्ड करता हूँ। तो एक बार पहले ये डिस्कस करते हैं, और उसके बाद कारो को एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा, और उसके बाद चले जाएंगे, क्योंकि अभी आज का टाइम वापस अपने पास एक 15-20 मिनट्स है। तो अपन मेनली क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ जो अपने इस कॉन्सेप्ट को रिलेटेड काम कर लेंगे। ओके, कारो का क्वेश्चन आया तो अपन उसको बाद में देख लेंगे। बड़ी क्लियर? ओके, तो मेरे ख्याल से मोटा मोटी ऑलमोस्ट सारा चीज आपको समझ में आ गया। आधे घंटे में मैं ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो ये चैप्टर की ऑडिट रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में अपन ने सब कुछ आई होप ऑडिट रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में सब कुछ टोटल तोड़ ध्यान में आ गया। बड़ी लेट्स स्टार्ट विद योर चैप्टर 7 रिपोर्टिंग। चालू करते हैं बड़ी। सबसे पहला टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, पेज नंबर 7.1 है, सबके पास मैंने नोट्स शेयर कर दिए हुए हैं। The auditor of listed company have affirmed in their audit report communication of significant audit findings, including significant deficiency in internal control of the company identified to TCWG, where such matters included in audit report of listed company, also well upon importance of such communication. ओके, अब यहाँ पर देखना, सबसे पहले लिस्टेड कंपनी आते ही आपके दिमाग में आता है एक तो EQCR आता है, उसी तरह लिस्टेड कंपनी आते ही KAM आ जाना चाहिए। KAM का फुल फॉर्म की ऑडिट मैटर, ये दिमाग में रखना, पहले तो दिमाग में रख लेना। ओके, ये क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में जा रहा है देखो, कंफ्यूज करने के लिए कर रही है इंस्टीट्यूट, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड मारते हैं। तो की ऑडिट मैटर किसको एप्लीकेबल है? खाली लिस्टेड एंटिटी को, लिस्टेड एंटिटी, और वो भी GPF में। ओके, SPF में लॉ रेगुलेशन बोलेगा तो की ऑडिट मैटर कंपलसरी होगा। अगर लॉ रेगुलेशन बोल रहा है, जो भी SPF आप कर रहे हो, 800 805 में जो अमेंडमेंट है मेजरली इट इज विद रिस्पेक्ट टू दैट ओनली। So if law regulation says that you need to report on key audit matter, you need to report. You don't have any other option, buddy. Okay, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को वापस देखो। तो ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनी, ओके, ऑडिट रिपोर्ट है तो ओके, इसकी ऑडिट मैटर आ जाता है दिमाग में। इथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस का भी कॉन्सेप्ट है। हैज अफर्म्ड इन देयर ऑडिट रिपोर्ट कम्युनिकेशन, यानी उन्होंने अपने ऑडिट रिपोर्ट कम्युनिकेशन में क्या डाला है? ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ कंपनी आइडेंटिफाइड टू TCWG। यानी क्या कहना क्या चाहते हैं भाई, कहना क्या चाहते हो भाई? ओके, वो बोल रहे हैं हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये डाला है कि हमने TCWG से कम्युनिकेट किया है। What we have communicated with TCWG, significant audit findings, significant deficiency in internal control, where such matters included in audit report of listed company. अबे listed company हो या unlisted company हो, it is nothing to do with this particular combination. ये की ऑडिट मैटर नहीं है, ये की ऑडिट मैटर नहीं है सर। ये किधर आया? ये मैंने आपको बताया था सेक्शन 3 मैंने रिवाइज करते हुए ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी में सेक्शन 3 बताया था ना, ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ है। सेक्शन 3 में हमने ऊपर वाले से बात की, हमने ऊपर वाले से कितनी बात की है? 3 पॉइंट है। थर्ड में फर्स्ट पॉइंटर में 4 पॉइंट है। हमने स्कोप बात कर ली है, हमने टाइमिंग ऑफ ऑडिट बात किया है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स बात की है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल बात की है। ये पहला पॉइंटर में 4 पॉइंटर थे। सेकंड वाले कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या बात की है? इथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस फॉर लिस्टेड एंटिटी। हमने और एक काम क्या किया हुआ है, हमने विद की ऑडिट मैटर विद लिस्टेड एंटिटी में हमने ऑलरेडी कम्युनिकेट कर लिया। हम ये लिख रहे इधर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? की ऑडिट कम्युनिकेट नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये मैटर कहां पर आते हैं लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में। तो मेरे को बताओ कौन से पैराग्राफ में आते हैं बड़ी, कौन से पैराग्राफ में आते हैं बड़ी, कौन से पैराग्राफ में आते हैं? पैराग्राफ नंबर कौन से वाले इसमें आएगा? ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ, ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ में सेक्शन 3 में आएगा बड़ी। ओके, एंड आल्सो वेल अपॉन सच कम्युनिकेशन। मेरे को बताओ क्या ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से काम बहुत जरूरी है? आंसर इज यस। हु इज रिस्पांसिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? Who is responsible for preparation of financial statement? Okay, management and TCFG. Okay, who is responsible for implementing controls? Management and TCFG. Therefore, they should be aware about significant findings, significant deficiency in internal control. और अगर किसी को मालूम नहीं होगा significant findings में क्या क्या आता है, okay, चैप्टर 2 देखेंगे, चैप्टर 2 में अपन significant findings के ऊपर डिस्कस करेंगे। significant findings की लिस्ट है, आई होप समझ में आ रहा है।
तो ये टेक्निकल पॉइंट। तो अब सिग्निफिकेंट फाइंड इन्होंने पूछा नहीं है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में क्या क्या आता है। अगर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में आता था क्या क्या आता है तो हम लोग चैप्टर फिर टू मतलब ऐसे 260 देखते थे। 260 के अंदर हम सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में क्या क्या कम्युनिकेट करते हैं वो देखते थे हम लोग। तो जैसे अपन सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में हम लोग बोलते हैं भाई यार हमारी फाइंडिंग्स क्या क्या हुई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में। सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होता है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज होता है, शायद याद आए आपको, सिग्निफिकेंट मैटर्स होता है। ओके, एनी सिग्निफिकेंट मैटर विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल जजमेंट अन्य यस। और वो अननेसेसरी ब्रीफ टाइम इज सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, डिले हो रहा है वो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग नहीं है। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग बड़ा है, एक नटशेल है। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग के अंदर सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हमने ऊपर वाले को बताया कि भाई यार ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मत करो, ये करो, दोनों सही है वैसे ये करने का। सेकंड सिनेरियो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, उसके अंदर हम लिखेंगे हमको दिक्कत आ रही है। तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग बड़ा कॉन्सेप्ट है। आई होप झिपरिंग मारी छपिंग छपिंग। ओके, तो ये किधर आएगा बड़ी, तो इंपॉर्टेंट समझ में आया। तो टेक्निकली इजी आंसर है बट कंफ्यूजिंग है सर। मैक्सिमम आंसर ये गलती क्या हो सकती है इसमें, पब्लिक क्या लिख सकती है इसमें, गड़बड़ क्या हो सकती है अगर इफ यू आर इन हरी एंड यू वांट टू राइट दिस आंसर वेरी क्विकली, यू मे एंड अप राइटिंग 701, जबकि द आंसर इज नथिंग टू डू विद 701। ओके, याद रखना 701 इज बेसिकली वेयर वी नीड टू highlight certain matter which has been already communicated with TCWG, but it is of so significance that we need to communicate to shareholder. Okay, तो ये ध्यान रखना। Such matter are in nature of auditor's responsibility and stated in auditor responsibility for audit of financial statement section in audit report as per 700. Communication of significant findings, deficiency identified in internal control to TCWG is one of the important responsibility. ठीक है, and such communication assist TCWG in fulfilling responsibility to oversee the financial reporting process and fulfilling that oversight responsibility. ठीक है, I hope ये समझा। ओके, तो इसका थोड़ा फॉर्मल कैसे करेंगे अपन, फॉर्मल कैसे करेंगे। ओके, सबसे पहला स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखने का, ये ऑडिटर एज पर 700 ये कौन से पैराग्राफ में आता है, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ में आता है। फिर थोड़ा सा आप डाल सकते हो ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। आप तीनों सेक्शन को मत बताइए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, एंड इन सेक्शन 3 वी कम्युनिकेट द मैटर्स विद TCWG। दिस कैन आल्सो बी एन एलोबरेटेड आंसर बड़ी। In section 3 we communicate this matter, we mention that we have communicated with this matter with whom, TCWG. Okay, and this include first matter, और first matter को emphasize कर लो कि भाई we discuss about timing, scope of timing of audit, scope of audit, significant findings in audit including significant deficiency in internal control। इतना करो और उसके बाद फैक्ट को लिखो, फैक्ट वाला लिखने का और फिर बाद में लास्ट क्लोज करने का, कंक्लूडिंग पॉइंट पे करने का। दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्क। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर बड़ी, क्लोज कर सकते बड़ी, ठीक है। Below is a draft extract of audit report of listed company. Okay, तो कुछ तो ड्राफ्ट दिया इन्होंने लिस्टेड कंपनी का। Para A below reflects certain matters stated in audit report communicated with CFO of the company, and para B is the nature of auditor's response to the said matter. यानी दो पैरा दिया है, पैरा ए दिया है, पैरा ए बोल रहा है ओके सर्टेन मैटर टू बी स्टेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट कम्युनिकेटेड विद सीएफओ, यानी कुछ मैटर हम ऑडिट रिपोर्ट में लिख रहे हैं और वो ऑलरेडी कम्युनिकेटेड किसके साथ है, सीएफओ। और पैरा बी में नेचर ऑफ ऑडिटर्स रिस्पांस ऑफ टू सेड मैटर, यानी ऑडिटर का रिस्पांस क्या था उन मैटर की तरफ, ओके सब लोग याद में क्लियर मेरे साथ। तो दो पैरा दिए हुए हैं, तो दो पैरा में क्या दिया है, फर्स्ट the company recognize the revenue where the control of goods is transferred to the customer at a net consideration which the company expect to receive for those goods from customer in accordance with contract and terms and conditions। यानी कंपनी का रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू के बारे में कुछ बताया गया है। The term of sales arrangements based on the terms and condition of relevant contract and nature of discount and rebates create complexity that require judgment in determining revenue। यानी ये लोग बोलते हैं कि भाई यार हम जब कंपनी जो रिकग्नाइज करती है, रेवेन्यू रिकग्निशन जो कर रही है उसमें नेट कंसिडरेशन लिया जाता है कंपनी का। ओके, अगर आप रीड कर रहे हो, और सेल्स एग्रीमेंट ऐसे है जिसके टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे है इसमें डिस्काउंट रिबेट्स ये दे के कॉम्प्लेक्सिटी तैयार होगी है, और उसमें कैलकुलेशन जो करना है उसमें क्या इन्वॉल्व है, जजमेंट इन्वॉल्व है, जजमेंट। We read with company's revenue recognition policy and assessed its compliance with terms of Ind AS। यानी हम बी का क्या था ऊपर, B is in nature of audit response to said matter। तो B ने अपना रिस्पॉन्स, बी में लिखा है कि ऑडिटर ने काम कैसे किया, बी में लिखा है ऑडिटर ने काम कैसे किया, सब लोग मेरे साथ। We assessed design and tested operating effectiveness of internal control related to sales। ठीक है, हमने TOC कर दिया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अगर आपको याद होगा तो।
We tested sample basis that revenue has recognized in proper period with reference to supporting documents including confirmation from customers. यानी हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी कर लिया है और सैंपल बेसिस पे हमने चेक भी कर लिया है पीरियड के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है क्या, इनवॉइसेस, बैंक स्टेटमेंट वगैरह वगैरह. From description above, identify what auditor are trying to report and under what heading such matter is reflected. तो टेक्निकली सर अगर आप देखें तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि ये ऑडिट रिपोर्ट में क्या कोशिश कर रहे हैं हम लोग करने की. पहला पॉइंट, क्या ये टाइटल है? नहीं. क्या ये एड्रेस ही है? नहीं. क्या ये ओपिनियन है? नहीं. क्या बेसिस फॉर ओपिनियन है? नहीं. गोइंग कंसर्न है क्या? नहीं. तो सर क्या ये मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी का डिस्कशन है क्या? नहीं. हम रिस्पांस भी तैयार किया ना, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी. तो हम तो ये लिखेंगे कि फाइनल जजमेंट तुम बनाओगे, इंटरनल कंट्रोल तुम डालोगे, गोइंग कंसर्न का एजम्पशन तुम करोगे, चेक करोगे, एप्रोप्रिएटनेस ये लिखेंगे. ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ थोड़ा नहीं है. ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ में तो हम ये लिखेंगे सर, ये कौन सा पैराग्राफ है? की ऑडिट मैटर पैराग्राफ. और आप कोई भी ऑडिट रिपोर्ट देखिए, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में दो चीज होती है, एक होता है डिस्क्रिप्शन क्या था की ऑडिट मैटर, और ऑडिटर रिस्पांस. क्योंकि की ऑडिट मैटर में हमें दोनों चीज बतानी है कि आपके हिसाब से कौन से की ऑडिट मैटर है और आपने रिस्पांस कैसे किया उस की ऑडिट मैटर को, उस की ऑडिट मैटर को कैसे सॉर्ट किया, कि उस की ऑडिट मैटर को कैसे आपने रिस्पॉन्ड किया, ये बताना बहुत जरूरी है. ओके, तो टेक्निकली आई होप ये झेपा क्या मालिक. तो मेरे को बताओ की ऑडिट मैटर को कैसे समझ में आएगा. की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में तब दो पैराग्राफ आया है, दो पैराग्राफ में पहले इसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, और दूसरे पैराग्राफ में क्या होगा, दूसरे पैराग्राफ में रिस्पांस ऑफ ऑडिटर होगा. कोई भी ऑडिट रिपोर्ट निकालिए. एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अभी इंटर की बैच चल रही है. अभी इंटर की बैच मतलब आपकी बैच की मतलब 415 की इंटर की बैच है. अभी इंटर की बैच में मैं एक रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट दिखा रहा हूँ. रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट अगर ये अच्छा ये देखो ऑडिट रिपोर्ट ही चल रहा है. तो अगर रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट देखोगे, ये रहा टू द मेंबर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री रिपोर्ट है, ओपिनियन पैराग्राफ है, जो ओपिनियन पैराग्राफ अपन जो डिस्कस करते हैं वही है. और अगर आप देखोगे तो ये क्या है, की ऑडिट मैटर. की ऑडिट मैटर में पहला मैटर बताया, रिस्पांस बताया, मैटर बताया, रिस्पांस बताया. आई होप ये झिपक है मालिक. मैटर एंड रिस्पांस, मैटर एंड रिस्पांस, मैटर एंड रिस्पांस. तो मैटर एंड रिस्पांस की कहानी पे अपन बात कर रहे हैं. इवन मैं अपने लेक्चर्स में भी अपन ने ये डिस्कस किया था, अपन ने ऑडिट रिपोर्ट आईटीसी की वगैरह रिपोर्ट ली थी अपन ने. तो टेक्निकली की ऑडिट मैटर पैराग्राफ है. So the above matter is in nature of key audit matter and should be stated under key heading key audit matter in audit report. Key audit matter are those matter okay in auditor professional judgment where most significance. ये आप देखोगे तो डेफिनेशन लिखा है जो स्टार्टिंग का पॉइंट है. तो ये की ऑडिट मैटर का डेफिनेशन लिख लिया है, की ऑडिट मैटर का डेफिनेशन दिया इन्होंने और कंक्लूड कर दिया कि ये पैराग्राफ की ऑडिट मैटर है. 701 स्टेट दैट ऑडिटर शैल डिटरमाइन. ओके, अभी वो चीज का थोड़ा एलोबरेटेड 701 के हिसाब से. Determine from key matter communicated with TCWG those matter that require significant auditor attention in performing audit. In making those determination, significant auditor judgments relating to areas of financial statement that involve significant management, including accounting estimate that have been identified having high estimation uncertainty. अगर आपको याद होगा सर ये क्या है, ये 3 पॉइंट में से एक पॉइंट है. पहला पॉइंट क्या था, ओके, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. 3 हाउ टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर, याद है क्या 3 पॉइंटर. हाउ टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर अपन ने लिखा ना 3 पॉइंट, आरएमएम, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एंड सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन. इसमें से सेकंड पॉइंट लिखा है इन्होंने क्योंकि सेकंड पॉइंट को मैच होता है ना. इट इज हैविंग हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. तो आपने ये आंसर देखोगे तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर लिखा है. समझा क्या सर? क्या इसमें मैं तीनों लिख सकता हूँ, तीनों पॉइंटर भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हो, लेकिन आपको एम्फसाइज किस पे करना है, सेकंड पे करना है. And last, okay, मत खत्म कर दो. The above described matter relates to revenue recognition and creation of complexity. Further description also describe how the matter was addressed by auditor. So it is in accordance with 701. भारत माता की जय. जेपिंग बड़ी 701 पक्का समझा, ये वाला पैराग्राफ का लॉजिक समझा. तो अब मेरे को बताओ की ऑडिट मैटर में क्या समस्या है. की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में कितने कॉलम होते हैं, एक कॉलम या दो कॉलम? दो कॉलम होता है हमेशा. पहला कॉलम होता है की ऑडिट मैटर क्या है और दूसरा कॉलम होता है उसका रिस्पांस क्या है. तो कभी भी की ऑडिट मैटर, कभी भी ध्यान रखना, की ऑडिट मैटर में दो कॉलम होते हैं. दो कॉलम मतलब दो पार्ट होते हैं. एक होता है डिस्क्रिप्शन या की ऑडिट मैटर क्या है, और दूसरा ओके हाउ यू हैव रिस्पॉन्डेड. और एक क्वेश्चन कर लेते हैं ओके, उसके बाद आज एंड करते भाई, क्योंकि वैसे ही थोड़ा सा लेट चालू हुआ था अपना. ओके, पीटीडी लिमिटेड is engaged in business of executing construction contracts for its clients. ठीक है, construction business है. There are non-current receivables outstanding in financial statement as on 31st March 24 of 500 crore. Such amount represent claim raised by company on its client relating to cost overrun.
यानी क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में है तो थोड़ा 2 साल का 3 साल हो जाता है तो कॉस्ट ओवररन हो जाती है, तो दे हैव रेज्ड देयर क्लेम, यानी क्लाइंट ने बोला होगा भाई यार 100 करोड़ का बजट है, 100 करोड़ दिया है तुम्हें, उन्होंने 50 करोड़ और ऐड कर दिया क्योंकि कॉस्ट ओवररन हो गया। नेसेसिटेड ड्यू टू डिलेस कॉस्ट बाय क्लाइंट, चेंज इन वर्क स्पेसिफिकेशन, रिलेटेड मैटर्स, ठीक है। Besides negotiation, the company has also gone for arbitration in some cases. Arbitration, I hope याद होगा, arbitration मतलब कोर्ट में ना जाकर हम कोई एक इंडिपेंडेंट पर्सन से मिलते हैं और वो जो डिसाइड करेगा फाइनल होएगा। The management of company has considered above amount fully recoverable, okay, and stated in notes of accounts. Stated in notes of accounts, notes to accounts, okay, यानी ये fully recoverable है, notes में लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है, मतलब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, notes में लिखा हुआ है। CA Piyush, auditor of the company, has relied upon management representation in this regard. Besides, he decided to include emphasis of matter paragraph in audit report. Okay. And how do you view the decision to include above emphasis of matter paragraph by auditor? This point. देखो, emphasis of matter paragraph को क्या अपन highlighting के लिए लिखते हैं ना हमारी? Highlighting क्या लिखना है? Notes में है जो highlighting है. लेकिन make sure ये point की वजह से आपका opinion modified नहीं होना चाहिए. सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना जरूरी है इस क्वेश्चन में, ओके, ये एक सेक्शन तो है और एक साथ में और एक सेक्शन है दैट इज 580 जिसमें मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर के ऊपर मेरे को बताइए क्या ऑडिटर ने ये जो लाइन मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्या ये सही है क्या? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन डब्ल्यू, अगर वर्ड याद होगा WR, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, उस पर रिलाई करना सही है या प्रोसीजर करने चाहिए? थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसेस लगाइए, क्या उसने प्रोसीजर करना चाहिए? बिकॉज WR इज नॉट एन ओके अल्टरनेट, WR इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर, ओके, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिटमेंट्स के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिटमेंट्स के लिए कोरोबोरेटिव है, कोरोबोरेटिव मतलब एड ऑन है, वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिटमेंट्स नहीं है, इट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट टू ऑडिट प्रोसीजर, नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर, तो आपको नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर करना चाहिए था इस जगह। सेकेंडली मेरे को बताओ, ओके, क्या ये आपको डायरेक्टली पैसे मिल चुके हैं? ओके, क्या मिल चुके हैं, मिलने वाले कंफर्म क्या सीन है, क्या है? नोट्स में दिया हुआ है, बाकी सब कुछ सही है, क्या ये सही है क्या तरीका? ओके, तो टेक्निकली ये क्या बोल रहे, क्वेश्चन क्या पूछ रहे, सुनो, क्वेश्चन क्या पूछ रहे, सुनो, हाउ डू यू व्यू द डिसीजन टू इंक्लूड द अबव मैटर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ बाय ऑडिटर, यानी ये पूछ रहे ऑडिटर ने सही किया क्या यूएम इंक्लूड करके? ओके, मैं आपको वापस बता रहा हूँ यूएम क्या करना है। अब ये देखो ना, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट आपके डिस्कशन का आ रहा है, यूएम में क्या देना होता है, बड़ी यूएम में क्या देना होता है? ओके, मेरे को बताओ यूएम में कौन से मैटर थे, मैटर अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और नॉट अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड? मेरे को सोच समझ के बताओ, अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और नॉट अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड, अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड होना चाहिए। ओके, अब थोड़ा सा थॉट पे लगाओ, यहां पर ये लोग है नॉन करंट रिसीवेबल है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल रहे हैं एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च ये अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाला जा रहा है। मेरा क्वेश्चन है क्या ये क्लेम डायरेक्टली हो गया या डिस्प्यूटेड है? अभी क्लेम डायरेक्टली हो गया या डिस्प्यूटेड है? अभी भी यहां पर अगर देखोगे, बिसाइड्स नेगोशिएशन द कंपनी हैज आल्सो गिवन एन आर्बिट्रेशन इन सम केसेस, ओके, यानी अभी तक इस पे डिस्प्यूट है, देगा कि नहीं देगा मालूम नहीं है, ये क्लेम डाला हुआ है, डिस्प्यूटेड है। ओके, अच्छा, क्या यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि इनके पास, कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि इनके पास कि ये मिलने वाला पैसा, कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि इनके पास? नहीं है। मेरे को बताओ फिर कैसे ही आप सेल्स में डाल सकते हो, कैसे आप रिसीवेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में डाल सकते हो आप ये अमाउंट? ओके, नॉन करंट रिसीवेबल कैसे डाल सकते हो? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो गलत है ना बड़ी। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत कर रहे हो और नोट में लिख रहे हो और आप बोल दो कि नहीं नहीं भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, ओके, नोट में डाल दिया ना, नोट में डाल, अरे नोट में ऐसा नहीं हो सकता। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है तो गलत है, 2-3 पॉइंट पे गलत है। सबसे पहला देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, तो आप इसको रिसीवेबल में डाल ही नहीं सकते। रिसीवेबल में कब आना चाहिए? रिसीवेबल में, अच्छा मेरे को बताओ, एक्सटर्नल कंफर्मेशन करेगा क्या सामने वाला? हाँ बोलने वाला क्या अभी? अगर ये 505 करता है, 505 सबको याद होगा ना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन 505 बोलते हैं ना, सबसे पहला लॉजिक ये रहना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन बोलते हैं, क्या कंफर्म करने वाले क्या ये लोग? पहला पॉइंट ये सही नहीं है। दूसरा पॉइंट यहां पर जो लॉजिक, आई होप ये बैठ रहा है दिमाग में, एंड दूसरा पॉइंट इन लोग ने क्या बोला है, ओके, द अमाउंट इज फुल्ली रिकवेबल। मेरे को बताओ क्या ये फुल्ली रिकवरेबल है क्या? क्या नोट सही है क्या? ये खत्म ना। तो यहां पर क्या करना चाहिए था, 706 या 705? 706 या 705?
705 होना चाहिए था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड इंक्लूडिंग, मतलब ये डेटस के इसमें तो ये डालेंगे भी नहीं है, लेकिन ये नोट्स में फुल्ली रिकवर दिखना भी ये गलत है ना कि नोट्स आप ये जो नोट्स प्रेजेंट कर रहे हो ये सबसे गड़बड़ वाला पॉइंट है बड़ी। तो ये रिसीवेबल हो ही नहीं सकता। डेटाज ये कंफर्मेशन नहीं है, लिटिगेशन है, आप डेटाज में डाल नहीं सकते, डेटाज में डाल नहीं सकते। ओके खत्म ना स्टोरी यार। तो टेक्निकली इर्द गिर्द अगर अपन देखे तो डोंट यू थिंक ये भाई साहब यहाँ पर ये गड़बड़ है। तो कॉन्टेक्स्ट पहले आप एम्फेसाइज ऑफ मैटर समझाइए, देख लो 706 में एम्फेसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ समझाइए, इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट दैट रिफर्स द मैटर एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज। खत्म हो गया ना, इधर एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज है ही नहीं। निगोशिएशन चल रहा है, निगोशिएशन चल रहा है, आर्बिट्रेशन में मैटर है, कहां से एग्री होने वाला है, कॉम्प्रोमाइज होगा, इसको सेट ऑफ होगा कुछ तो। In financial statement, auditor's judgment is of such importance that fundamental to the user of understanding. 706 objective auditor having formed an opinion, financial statement draw attention when auditor's judgment it is necessary to do so by way of clear adding a communication in audit report. ओके ये तो ठीक है, ये 706 वो बताया मालूम है, मैटर ऑल्दो अप्रोप्रिएटली। ये अगर देखोगे 706 का, ये तो मेरे को समझा ही नहीं है। अच्छा ये लास्ट का 706 समझाने के लिए लिखा होगा। अगर आपको याद है 706 रिलेट टू टू थिंग्स, वन इज यूएम एंड ओएम, तो ये दोनों समझाया हुआ है, यूएम एंड ओएम। ये अपना आंसर रटा हुआ यूएम एंड ओएम के ऑब्जेक्टिव, तो ये वाला पॉइंट हो गया। फर्दर द ऑडिटर शैल इंक्लूड यूएम पैराग्राफ रिपोर्ट, ऑडिटर it shall include an UM paragraph in audit report provided auditor would not require to modify the opinion in 705 as a result of matter. तो UM कब नहीं आएगा? दो पॉइंट पे, दो केसेस, इन्होंने एक ही लिखा है पर कब नहीं आएगा? दो केसेस में। कौन से दो केसेस में बड़ी? दो केसेस में, कौन से मैटर में? दो केसेस 705 एंड 706। आई होप बड़ी क्लियर। 706 नहीं, सॉरी 705 एंड 701। 701 ये दो टाइम पे आपका ये नहीं आएगा। तोड़ बड़ी ठीक है। अब इसमें देखो पहला पॉइंट ईओएम तो दे दिया, ओके फुल्ली रिकवरेबल ये नोट्स का दे दिया इन्होंने। मेरे को ये बताओ in given situation auditor has relied upon management representation only, he has not performed any audit procedure like verifying contracts with customers, status of arbitration proceeding. Since management representation themselves do not constitute sufficient appropriate evidence, performing necessary audit procedure may lead to conclude that modification of opinion is necessary. In such circumstances matter cannot be included in emphasis of matter paragraph. Therefore, auditor should form his opinion by performing necessary audit procedure and obtaining sufficient appropriate audit evidence. It is only when he can conclude that modification of opinion is not required, okay, as a result of said matter or UM is required. ठीक है, समझ में आया? तो टेक्निकली अगर उसके पास और एविडेंस आते हैं कि ये मिलने वाला है, मतलब कौन सा मिलने वाला है, कौन सा एविडेंस आना चाहिए उसको? ईसी का। ईसी का फुल फॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन को एविडेंस मिलने वाले कि हम देने वाले हैं तो काम खत्म होना बड़ी। लेकिन वो किया गया उसने नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन आई मिस आउट, इसमें ऐसा लिखा है ही हैज डिसाइडेड, ओके मैं वो घाई में देखा ही हैज इंक्लूडेड, ही हैज डिसाइडेड, तो एक्चुअली हमने उसको बोलना चाहिए कि काम कर ले भाई। तो इस क्वेश्चन में ऐसा था ही हैज डिसाइडेड, आई थॉट ही हैज कंक्लूडेड, मतलब उसने लिख दिया है, तो इसीलिए लास्ट लाइन इन्होंने दी हुई है। टेक्निकली मेरे को बताओ अगर ये बोलते कि इन्होंने यूएम में लिख लिया है, क्या ये सही है? क्या ये यूएम में लिखना सही है क्या? आंसर इज नो, अनलेस अंटिल उसका सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, मतलब जिसमें वो कंफर्मेशन आ जाए। मेनली अगर 505 ही हो गया ना काम खत्म है। 505 हो गया मतलब उसके लिए एविडेंस क्या है मेनली? देखो कभी भी याद रखना, आई होप ये एक चीज मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट में पॉइंट याद रखना। ईआरसीवी शायद आपको याद आए, ईआरसीवी अपन ने बात की थी, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन। ओके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का तो डिस्कशन इधर आएगा ही नहीं, रीजन सिंपल है, बिकॉज इट इज नथिंग टू डू विद पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेंटरी। बट ईसीवी तो आएगा ना। एग्जिस्टेंस पता किया क्या? नहीं। कंप्लीटनेस ओके स्का पर पता है, और कितने क्लाइंट का कुछ डिस्कशन है, कुछ और डिटेल नहीं है। वैल्यूएशन में फुल्ली रिकवरेबल लिखा हुआ है, जो कि वो भी गड़बड़ है। आई होप ये लॉजिक समझ में आया बड़ी। ओके लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉइंट मेरा जो इंटरप्रिटेशन था कि ये इंटरप्रिटेशन ऐसा था कि उसने इंक्लूड कर लिया ही हैज डिसाइडेड। अभी वो लास्ट वाला पैराग्राफ देखा तब देखा ही हैज डिसाइडेड, अगर ये ही हैज डिसाइडेड नहीं होता ही हैज इंक्लूडेड तो अपना आंसर होता था हिज कंटेंशन इज रॉन्ग, मतलब ये उसने गलत किया हुआ है, ये सही नहीं है। ओके तो यही अपन लिखेंगे। भारत माता की जय। शिपिंग बड़ी ओके
मेरे को बताओ, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा बड़ा ही है ये, आपको नहीं लगता थोड़ा सा बड़ा ही है? ये थोड़ा सा कंसाइज कैसे हो सकता था? आई डोंट थिंक सो, मतलब मेरे एंड से बोल रहा हूँ, ये आप क्वेश्चन बैंक को देख के ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर को ध्यान रखना। आज का जोरदार सेशन गया, तोड़ बड़ी, थैंक्स बड़ी। ओके, पर क्वेश्चन को देख के देखना, ये दो लिखने की जरूरत अवॉइड कर सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि द क्वेश्चन इज ऑन ईओएम पैराग्राफ, द क्वेश्चन इज नथिंग टू डू विथ ओएम। तो आप ये, अगर ये पैराग्राफ इतना सा अवॉइड हो सकता था, ओके, ये वाला टेक्निकल अवॉइड हो सकता था। हाँ, ईओएम और मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, ये एक अपन दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अवॉइड हो सकता था। तो भारत माता की जय, तोड़ बड़ी। ठीक है, तो हasta la vista, मिलते हैं मालिक। ओके, कल खाली मेरा रूट कैनल है, सुबह 11:30 बजे मेरा रूट कैनल है, 11:30 बजे इधर प्रेस्टी पॉइंट पे, पुणे के ऑफिस में ही हूँ। तो अगर रूट कैनल हो जाता है और उसके बाद मेरा थोड़ा नॉर्मल होता है तो उसका लेते हैं, अदरवाइज मैं प्लान करूंगा लेट इवनिंग और अगले दिन सुबह, सुबह अर्ली मॉर्निंग, ऑल्सो अर्ली मॉर्निंग, समझ रहे हो? सैटरडे को अपन सुबह 8 बजे से लेकर 9, 9:30, 10 बजे तक ले लेंगे, आइदर ऑफ इट। और कल अगर कंफर्ट जोन आ गया तो सेम टाइमिंग बड़ी। ठीक है बड़ी, तोड़ बड़ी। ओके,